Now all of you see here. What is the difference between the zero group elements and now all of you see here. What are the zero group elements? Helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. What is the difference between zero group element and other elements? इन एलिमेंट्स में और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें क्या अंतर है? रिमेनिंग एलिमेंट्स में यू विल फाइंड दैट either they combine with the same atom or they combine with the atoms of the other element. What will you find? You will find that in the remaining elements में क्या है? Their atoms will combine either with itself or they will combine with the atoms of other element. While this do not take place here, do not take place among these. जैसे हम देखें, एक हमने रिमेनिंग एलिमेंट ले लिया H, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन या ओजोन. इट्स क्लियर? ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस. You have seen that hydrogen and oxygen combine and they form what? H2O. It's clear? You have seen that sodium and chlorine. इन दोनों एलिमेंट के एक एक एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? NaCl. It's clear? But you do not find here. Here you will find that they don't combine with itself, either itself or the atoms of other elements. ना तो ये खुद अपने आप से कंबाइन होते हैं और ना ही क्या है, they combine with the atoms of other elements. It's clear? So what is the peculiar property? What is this peculiar property is because of what region? ये जो peculiar property है, जो क्या करती है, इनको ना तो खुद अपने आप से रिएक्ट करने देती है, ना ही दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने देती है. Because of this peculiar property is because of stable structure in the valence cell. It is because of their stable structure in valence cell. Stable structure in valence cell. What is valence cell? Who can tell? Sir, the outermost shell. Outermost cell is known as valence cell. Now, what is the meaning of valence stable structure in the valence cell? Stable structure in the valence cell. ये बुक हटा दो. बुक को ठीक से रखो ना, थोड़ा कम. Yes. Now see here. What is the meaning of stable structure in the valence cell? सर उसका मतलब उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटरमोस्ट शेल में. देख लो, स्टेबल स्ट्रक्चर इन वैलेंस सेल का मीनिंग है इफ देयर इज ओनली वन सेल मतलब के सेल ना. पहले सेल का क्या नाम होता है? के सेल ना. बाद के सेल का नाम एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल ये है ना. फर्स्ट सेल इज नोन एज के सेल. क्लियर? न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होता है के सेल. So if there is only one cell and that cell is having 2 electrons, it's clear? If there is only K cell and K cell is having 2 electrons,
then that element is said to have stable structure Duplex in the structure. valence cell. It is said to have stable structure in the valence cell. Or if there are more than one cell, if there are more than one cell, then 8 electrons in the valence cell means stable structure. 8 electrons in the valence cell is the stable structure. And here if you see, you will find that it is having 2 valence electron and rest are having 8 valence electrons. Rest are having 8 valence electrons. And because of this property, these elements are having stable structure in the valence cell. अब देख लो, जब भी कोई एक एटम A दूसरे एटम B से कंबाइन करेगा, एक्चुअल में होता क्या? When one atom A combines with the other atom B, what happens? तो होता क्या है? Either A will lose the electron and B will gain the electron. One will lose and other will gain. एक लूज करेगा, दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा. या क्या होगा? They will do the sharing of electrons. But all these things will be possible only in between their valence cells. ये सभी चीजें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये केवल क्या है? वैलेंस सेल तक ही परमिटेड है. ऐसे मतलब क्या है? पेनल्टीमेट सेल नहीं कर सकता. पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता? सेकंड लास्ट सेल. जैसे हमने ये एक एटम शो किया, इसमें कितने सेल्स तुमको दिखाई दे रहा है? 4 or 3. This is the nucleus. So there are how many cells? K cell, L cell, M. ये सेल तो वैलेंस सेल है और ये सेल क्या है? पेनल्टीमेट सेल है. पेनल्टीमेट सेल मतलब तो सिंपली कह सकते हो कि सेकंड लास्ट सेल है. So see here, all of you remember one thing, that when one atom combines with the other atom, it will take place because of either transfer of electron from one atom to the other or because of the sharing of electrons. But this transfer or sharing will be permitted only up to valence electrons. Only up to valence electrons. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चले जाएं. This thing is clear? So see here stable structure in the valence cell means they neither transfer the electron nor gain the electron nor they do the sharing of electron. ना तो ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ना गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ना ही शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की in the valence cell. And because of this property they are having the stable structure, and because of this property they are in the inert state. इस स्टेट में inert, जो किसी से भी ना रिएक्ट करे, that is called the inert. It is clear? So you can see here if you see the table, then this table shows their electronic configuration. Helium is having 2 valence electrons, rest all are having 8 valence electrons. It is clear? Have you got? Now see here. If you see here this thing, you can also underline. You can underline here also. You got this? Thus we can say that helium has duplet structure. Duplet structure का meaning क्या है? What is the meaning of duplet structure? सर मतलब एक ही शेल हो और उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन.
हाँ, एक ही सेल हो और उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस सेल में, क्या ये ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर है? नहीं है। आए समझे? जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2882। क्या ये ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर है? नहीं है। आए समझ? वैलेंस सेल में 2 तो हैं पर ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए एक कंडीशन और भी है। क्या है? देयर मस्ट बी वन सेल। देयर मस्ट बी ओनली वन सेल। केवल कितना सेल होना चाहिए? एक सेल होना चाहिए। दिस इज क्लियर? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. रेस्ट ऑल आर हैविंग ऑक्टेट स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टेट स्ट्रक्चर। OCTET, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। OCTET, octet structure. So you can see here, you can underline in your book also if you want. Thus we can say that helium had duplet structure. It's clear? In this side, in its valence shell, whereas all other noble gases have octet structure in their valence shell. It's clear? As all noble gases are chemically inactive, therefore following conclusion can be drawn. Number 1, duplet structure of valence shell makes an element inactive. And number 2, octet structure of valence shell makes an element inactive. It's clear? Now see, एक चीज और भी है। When any atom will have the stable structure, when any atom will have the stable structure, then it will be in the minimum energy state. Stable structure है, then it will be in the minimum energy state. Stable structure, then it will be in the minimum energy state. Or we can say that when the atom is in the minimum energy state, it will have stable structure. वो मिनिमम एनर्जी जब रखेगा तब वो क्या होगा? स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। दिस इज क्लियर? स्टेबल स्ट्रक्चर का मीनिंग अभी हमने बताया। व्हाट इज इट्स मीनिंग श्रेया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर? इधर ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर इन द वैलेंस electrons. इधर ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट स्ट्रक्चर। इट्स क्लियर? Yes. अब जरा देखो, सब लोग इसको समझ गए होंगे। इफ यू सी सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. इट्स क्लियर? व्हेन इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बताओ क्या बन जाएगा? स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम सोडियम आयन। और ये आयन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? Positive. पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज विल बी। नाउ हियर व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28। इट्स क्लियर? आप सब लोग बताएं, which one is more stable? Sodium atom is more stable or sodium ion is more stable? So sodium ion. ion. Sodium ion is more stable. Sodium ion is more stable. Is clear? It is more stable. Now see here chlorine. Electronic configuration 287. When it gains one electron,
what will happen? It will become Cl minus. What is electronic configuration? 288. Which one is more stable? Chlorine ion is more stable. It's clear? Because it is having octet structure in the valence cell. Having octet structure in the valence cell. So chlorine ion is more stable. अब बताओ, यहाँ पर now you can see here, जो सोडियम आयन है इसका स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस नोबेल गैस से मैच करता है? टेबल देखकर बताओ। नियॉन। नियॉन से ना, मतलब क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या है, नियरेस्ट नोबेल गैस का स्ट्रक्चर अचीव कर लिया। हम क्यों कह रहे हैं नियरेस्ट? सब लोग देखे, पीरियोडिक टेबल देख, करो वो फटने ना पाए, इसीलिए देख लो, कोई छोटे में नहीं। Now you see on the page 2, पेज 2 देखो सब लोग, क्योंकि पूरा आ नहीं पा रहा। You got page 2 पीरियोडिक टेबल, ये चीज देखो। देख लो सोडियम कहाँ है, यहाँ है ना, जहां हमने पेन रखा। आए समझे? आए समझ में? अब बताओ, यस सर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। 11। सोडियम के जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट है? नियॉन है, जो कि नोबेल गैस है। और जस्ट बाद कौन सी नोबेल गैस है? आर्गन है। आए समझे? सोडियम की जो पोजीशन है, उसके पहले कौन सी नोबेल गैस है और उसके बाद कौन सी है? तो सोडियम के पहले है नियॉन और सोडियम के बाद कौन सी है? आर्गन। बताओ कौन पास में है सोडियम के? नियॉन पास में है या आर्गन पास में? नियॉन। देयरफॉर सोडियम ने किसका स्टेबल स्ट्रक्चर अचीव किया? नियॉन। अब जरा क्लोरीन का देखो, क्लोरीन यहां है। क्लोरीन के जस्ट पहले, क्लोरीन के पहले कौन सी नोबेल गैस है? तो क्लोरीन के पहले कौन सी नोबेल गैस है? नियॉन। ऐसे। और क्लोरीन के बाद कौन सी है? आर्गन है। तो हर एक एलिमेंट क्या करता है, नोबेल गैसेज के अलावा जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, इनके अलावा जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबेल गैस का स्टेबल स्ट्रक्चर अचीव करते हैं। तो क्लोरीन के नियरेस्ट कौन है? आर्गन। तो ये आर्गन का स्टेबल स्ट्रक्चर अचीव किया है, तुमने देखा है यहां पर। ये किसका स्टेबल स्ट्रक्चर है? इट इज द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन। है यू गॉट दिस थिंग? है यू गॉट? यस सर। मतलब क्या है, एलिमेंट्स कैन अचीव द स्टेबल स्ट्रक्चर by completing 8 electrons in their valence cell. By completing 8 electrons in their valence cell, elements, atoms can achieve the stable structure by achieving 8 electrons in their valence cell. And how
they can do so. वो ये चीज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ये चीज कर सकते हैं? So either by losing the electron or by sharing the electron, either by losing the electron or by gaining the electron, or by doing the sharing of electrons, or by doing the sharing of the electrons. आया समझे? नोबेल गैसेज के अलावा, नोबेल गैसेज कौन सी है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है. Except these elements, atoms of other elements can achieve stable structure. In what way? Either by losing electron or by gaining electron or doing the sharing of electrons. मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक पार्टनरशिप करेंगे, ना तो लूज करेंगे ना गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एक पार्टनरशिप करेंगे. It's clear? That also I am going to show. It's clear? And in this way they will achieve the stable structure of nearest noble gas. ये करके वो क्या कर लेंगे? स्टेबल स्ट्रक्चर अचीव कर लेंगे नियरेस्ट नोबेल गैस का. It's clear? So see here, you can see शेयरिंग कहाँ होती है, हम वो बता रहे हैं. देख लो ऑक्सीजन का जो एक एटम है, ऑक्सीजन, what is symbol? O. What is electronic configuration? 2,6. There are how many valence electrons in the oxygen? ये अगर हम ऑक्सीजन एटम बनाएं तो देख लो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस. Then there are 2 cells. एक सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया. इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2. जबकि दूसरे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's clear? In the same way, there is the other atom of oxygen. ये न्यूक्लियस है. Then there is K cell and ये K cell में 2 इलेक्ट्रॉन, L cell में 6. K cell is having 2 electrons and L cell is having 6 electrons. One, two, three, four, five, six. अब देख लो क्या दोनों एटम्स स्टेबल स्टेट में हैं? No, sir. Whether they are in the stable No, sir. state? नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बताओ. सर क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डुप्लेट या फिर वो नहीं है ऑक्टेट स्ट्रक्चर. क्योंकि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं. क्योंकि उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. पर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं हम तुमको बता रहे हैं. ये ऑक्सीजन का एक एटम ये है, हमने अभी ऐसे बना दिया. ये ऑक्सीजन का एटम है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. आए समझे? और ऑक्सीजन का दूसरा एटम इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. कैसे? शेयरिंग कर लेंगे. क्या कर लेंगे? एक पार्टनरशिप कर लेंगे. उस पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह पर, दोनों एटम्स. इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट कर दिए, इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिपॉजिट कर दिए? यहाँ पर. कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बोलो. 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स.
Now over these shared electrons, both are having equal right. Both the atoms are having equal right over the shared electrons. तो अब देख लो shared हो गए 4 और 4 यहाँ, तो टोटल मिलके कितने हो गए? 8 हो गए। 8 इस वाले ऑक्सीजन के 8 हो गए, इस वाले के कितने हो गए? ये भी 8 हो गए। इसके भी 8 हो गए। मतलब अलग अलग तो अनस्टेबल थे, पर जब कंबाइन हो गए तो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। कंबाइन हो गए तो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। क्यों? कंबाइन होके क्या कर लिया? They have completed octet structure in their valence shell. तो देख लो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? Why do the atoms of any element combine with itself or combine with the atoms of other element? मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम्स क्यों अपने आप से कंबाइन होते हैं या दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं? Who can answer? एकता गुप्ता। सर एकता गुप्ता पहले sir to complete their octet. हाँ, क्यों? फाल्गुनी बताए। सर क्योंकि मतलब सभी के पास अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो मतलब मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहे, हाँ, मिनिमम और वो सर एनर्जी। ऐसा ऑक्टेट स्ट्रक्चर या डुप्लेट स्ट्रक्चर में रहकर ही कर सकते हैं। हाँ, ऑक्टेट स्ट्रक्चर या डुप्लेट स्ट्रक्चर में ही रह के कर सकते हैं। वेदिका बताए क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी लाने के लिए। एटम्स दूसरे एटम्स के साथ क्यों कंबाइन कर सकते हैं? दूसरा एटम खुद ही उसी वाले एलिमेंट का हो सकता है या दूसरे एलिमेंट का भी हो सकता है। क्यों कंबाइन होते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल स्टेट, in order to achieve the minimum energy state, and this they can do by achieving octet structure or duplet structure in the valence shell. कैसे कर सकते हैं? स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? मिनिमम एनर्जी स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय अचीविंग द ड्यूप्लेट और ऑक्टेट स्ट्रक्चर इन द वैलेंस सेल। और वो कितने तरीके से कर सकते हैं, कोई बता सकता है? सर या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या डोनेट करके। इधर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इधर गेनिंग और लूजिंग, क्योंकि अगर एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा ना। इधर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय डूइंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। दिस थिंग इज क्लियर? वेदर इट इज क्लियर और नॉट? तो देख लो, why do elements form compound? हमने बता ही दिया है। कंपाउंड क्या होता है? when atoms of two different element or same element combine by either by sharing of electron or by losing and gaining of electron is called compound. I said, so this I you told, so this you will read. ये सब लोग पढ़ लेंगे, इसको रीडिंग जरूर करेंगे ना। अब देख लो, कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं ना। अब हम बताने जा रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि तुमने देखा है एलिमेंट्स कैन अचीव स्टेबिलिटी इन टू वेज, इधर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय डूइंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आए समझे? तो दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे, दो तरीके की बॉन्डिंग होगी। आए समझे? ये क्या होते हैं? एक होते इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनका दूसरा नाम क्या है? आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। इनके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग।
कैसे फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द losing of electrons by one atom and gaining of those electrons by the other atom or atoms, by other atom or atoms. ऐसे एक लूज करेगा और गेन क्या है? एक एटम करेगा या एक से अधिक एटम भी गेन कर सकते हैं. This is clear? Now see here, for example, you see NaCl. In your course there are three: NaCl, MgO and Ca. यही MgCl2 and Ca. See here NaCl. अभी हमने बताया है. What is the electronic configuration of Na? 281. Cl 2,8,7. अभी जस्ट हमने बताया था it can achieve the stability by losing one electron. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 2,8 means it has achieved stability, and it can achieve stability by accepting one electron. Then it will become 2,8,8. Means if you draw the electron dot diagram, हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रा करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तो हम केवल वैलेंस सेल बनाते हैं. कौन सा सेल बनाते हैं? ओनली वैलेंस. तो देख लो ये Na, ये Na हो गया. सीधा वैलेंस सेल. वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1. देन क्लोरीन. There are how many valence electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now what will happen? It will transfer its one electron to this. तो अब ये क्या हो जाएगा? It will become Na plus. और क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरीन के पास अपने कितने थे पहले? 7. और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी आ गया. जस्ट हमने एक डिफरेंट कलर से इसलिए शो किया कि ये किसका इलेक्ट्रॉन है? सोडियम का. नाउ इट हैज गेन्ड वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम माइनस. आई सुन. मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम हैज कन्वर्टेड into Na plus, chlorine has converted into Cl minus. Is clear? Now there will be what type of force in between them? ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज. कैसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक. कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will be produced. Electrostatic force will produce, and when they will electrostatic force will produce, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करेंगे, what will happen? It will become NaCl. दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दोनों आयंस एक दूसरे से चिपक जाएंगे. It's clear? That's why we say that electrovalent compounds are aggregation of ions. Electrovalent compounds are aggregation of or cluster of ions or aggregation. मतलब अगर तुम्हारे पास NaCl कुछ रखा हुआ, कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl. So in that there will be a cluster of huge cluster of these ions, huge cluster of these ions which are clinging together, जो एक दूसरे से क्लिंग है, चिपके हुए हैं. क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है. इट्स क्लियर?
Whether it is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's why they are called the ionic compound. इसीलिए इनको ionic compound कहते हैं. क्यों? Because they furnish ions. When they are dissolved into water, they furnish ions. ये ions furnish करते, ions produce करते हैं. It's clear? So what is electrovalent bonding? In the electrovalent bonding, one atom will lose the electron, other atom will gain the electron. It's clear? Like this. Now you can see one more example. This is in your course. It's the electron dot structure is in your course. Now you can see here. Magnesium chloride. Formula is MgCl2. Now tomorrow I will explain because the time is limited.